हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम साइंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने टॉप बुक्स फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानकारी ली। अब इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे, जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू सब्जेक्ट दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। In the name of this subject, there are two words. First one is fluid and second one is mechanics. So we have to understand the meaning of these two words separately. So first we'll see the meaning of word fluid. Fluid can be defined as a substance which has ability to flow is known as fluid. A substance which has ability to flow is known as fluid. जो सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं उन सब्सटेंस को हम फ्लूइड बोल सकते हैं। Now the fluid can be defined in other words also. A substance which deforms continuously under the action of shear stress is known as fluid. जो सब्सटेंस कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ shear stress डिफॉर्म हो सकता है उस सब्सटेंस को हम फ्लूइड बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ये है कि कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ shear stress that substance has to undergo deformation continuously, so that substance is known as fluid. दोनों भी डेफिनेशन में हमने एक वर्ड देखा है अ सब्सटेंस। सो हम सब्सटेंस किसे बोलेंगे? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट इज सब्सटेंस। सो सब्सटेंस इज एनीथिंग विच हैज मास and which occupies space. That is known as substance. कोई भी चीज़ जिसे अपना खुद का मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उस चीज़ को हम सब्सटेंस बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, देयर आर 3 states of matter. First state is solid, second state is liquid, and third state is gases. There is fourth state also, that is plasma, but it exists at higher temperature only. So basically we are considering these 3 states. Out of these 3 states, liquids and gases are the substance which has ability to flow and they can undergo continuous deformation under the action of shear stress. Therefore we can call these two states as fluid. So here we can write liquids and gases can be referred as fluid. Friends, there is some differences between solid and fluid. One of the difference that we are considering here is stress is directly proportional to strain in case of solid, but in case of fluid stress is directly proportional to strain rate. This is a basic difference between solid and fluid. One more difference in solid and fluid is that solid has definite shape but fluid don't have definite shape. Fluid
acquire the shape of the container in which they exist. फ्लूइड को अपना खुद का शेप नहीं रहता, वो जिस कंटेनर में रहते हैं उस कंटेनर का शेप वो एक्वायर करते हैं. So friends, this was about the fluid. Now second word that we are going to consider here is mechanics. So, mechanics is a branch of science which deals with both stationary and moving body under the influence of force. इन मैकेनिक्स कोई भी बॉडी जो स्टेशनरी या फिर मूविंग कंडीशन में है उस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस फोर्सेस का क्या इफेक्ट हो रहा है ये हम स्टडी करते हैं. Next concept that we are going to see here is fluid mechanics. Fluid mechanics is a branch of science which deals with behavior of fluid at rest as well as in motion. कोई भी फ्लूइड जो स्टैटिक कंडीशन में है या फिर मूविंग कंडीशन में है उस फ्लूइड का बिहेवियर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं. तो बिहेवियर स्टडी करना यानी क्या करना? तो फ्रेंड्स, कोई भी फ्लूइड जो स्टेशनरी या फिर मूविंग कंडीशन में है उस फ्लूइड के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उस फ्लूइड के ऊपर वो फोर्सेस का क्या इफेक्ट हो रहा है, ये अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं. इसके अलावा अगर फ्लूइड कोई सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आ रहा है तो उस सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आने के बाद वहाँ पे क्या क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, या फिर कोई फ्लूइड अगर दूसरे इमिसिबल फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है तो दोनों इमिसिबल फ्लूइड के बाउंड्री पे क्या क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ये भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं. फ्रेंड्स, वी आर नोइंग दैट देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. First one is fluid statics. Second one is fluid kinematics. And third one is fluid dynamics. We'll see all these 3 branches of the fluid mechanics. So first we'll see the fluid statics. Fluid statics is study of fluid at a rest condition. At rest is known as फ्लूइड स्टैटिक्स. फ्लूइड स्टैटिक्स में जो फ्लूइड हम कंसिडर करते हैं वो फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रहता है और उस रेस्ट कंडीशन में जो फ्लूइड है उसका स्टडी हम फ्लूइड स्टैटिक्स में करते हैं. सेकंड ब्रांच दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स.
Fluid kinematics means study of fluid in motion without considering pressure forces is known as fluid kinematics. So in case of fluid kinematics, the fluid that we are considering is in motion. फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो फ्लूइड हम कंसिडर कर रहे हैं वो फ्लूइड मोशन में रहता है, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम प्रेशर फोर्सेस कंसिडर नहीं करते. हियर वी हैव रिटन विदाउट कंसिडरिंग द प्रेशर फोर्सेस. ओके, सो वी आर डीलिंग विद द फ्लूइड विच इज इन मोशन, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द प्रेशर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट फ्लूइड. नेक्स्ट ब्रांच इज फ्लूइड डायनामिक्स. So fluid dynamics is study of fluid in motion with considering pressure forces is known as fluid dynamics. तो fluid dynamics में जो fluid हम consider करते हैं वो fluid भी motion में रहता है, और इस केस में वो fluid के ऊपर जो भी pressure forces act हो रहे हैं वो pressure forces हम consider करते हैं. अब fluid kinematics में और fluid dynamics में similarity ये है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में और फ्लूइड डायनामिक्स में जो फ्लूइड हम कंसिडर करते हैं वो फ्लूइड मोशन में रहता है, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स में और फ्लूइड डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है. तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम प्रेशर फोर्सेस कंसिडर नहीं करते. हियर वी हैव रिटन विदाउट कंसिडरिंग प्रेशर फोर्सेस, एंड हियर वी हैव रिटन विथ कंसिडरिंग प्रेशर फोर्सेस. सो फ्लूइड डायनामिक्स में हम प्रेशर फोर्सेस कंसिडर करते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम प्रेशर फोर्सेस कंसिडर नहीं करते. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. So friends, we have seen here the fluid mechanics and sub branches of the fluid mechanics. Friends, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.